today we are celebrating the birthdays of our beloved students. One of them is Gaurang Mishra from 9th B. He's very studious, obedient and active boy. The second one is Janvi Chauhan from 7th C. She's also very studious, active, excellent in dance. And the third one is the Dvij Upadhyay from 6th B, a very obedient, active boy. On their special day, let's wish them a very happy birthday by chanting the mantra, please. दीर्घायु आरोग्यमस्तु सुयश भवतु विजय भवतु जीवेम शरदः शतं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिने तव है सकलं सफलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात् श्री राम जय जय राम. Thank you. Thank you. Thank you. Very fine, cheerful morning to everyone. Before we celebrate the birthday of one of our members of this vast Alok fraternity, Mrs. Rashmi ma'am, Rashmi Doshi ma'am, she is a part of this institution since 2020 and she has been an integral part of this institution because she is taking not the academics but the thing which is directly related with it, and that is she is taking care of our library, and the most important thing that she is also an athlete and she is taking care of all the girls and managing the swimming and just training them and nurturing them in that particular field. A person with a very gentle heart, and on behalf of whole Alok Gurukul family, I wish her also a very happy, healthy and prosperous life ahead. Happy birthday Rashmi ma'am. So just greet her also. दीर्घायु आरोग्यमस्तु सुयश भवतु विजय भवतु जीवेम शरदः शतं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिने तव है सकलं सफलं भूयात् सकलं च शुभं भूयात् श्री राम जय जय राम. Today we all have gathered here this morning to celebrate the investiture ceremony and interact oath ceremony of our school. This ceremony marks the induction of our new student council leaders who will carry the torch of responsibility in the discharge of various positions of student council. To begin our event, it's an honor and privilege for all of us to welcome our chief guest and all the dignitaries here. I would like to request our principal sir, the navigator of this flagship of knowledge, to give the welcome speech and address us. Fine morning once again. It is a very auspicious occasion that today we all have assembled here for the joint house investiture ceremony and interact oath ceremony. Today amongst us we have got as an installation officer PDG Rotarian Nirmalji Singhvi Sahab, interact committee chairman Rotary Club Udaipur, the director Alok Institutions, president Rotary Club of Udaipur Rotarian Shriman Chhajar Sahab, secretary Rotary Club of Udaipur Shriman Sarupriya Sahab. I welcome all of you in this Maharishi Ved Vyas Sabhagar. It is our great pleasure that
on this investiture ceremony, I am welcoming you. Sir, we all have gathered here to not only to celebrate, but to recognize the leadership, dedication, commitment, and a sense of responsibility to every office bearers of house as well as the Interact Club. At our school, Alok is a very different organization. It is not a normal school. It is an institution where we are not only nurturing the academic part only, but here we are also developing the leadership quality and the sense of responsibility amongst all the students. With the sense of responsibility, the most important thing is the accountability. We are not here to give the badges to the students, but badges means the responsibilities. Badges means the commitment and dedication towards an object. The badges means you are accountable for everything which you are doing within the school campus. So it is a very important thing. As per the tradition of Alok, we just assign maximum work to the maximum students. And because of that, every student sitting here, he or she has got certain responsibilities, which makes them accountable for their work. Alok is a very, as I said, it is a very different institution. We work on the philosophy of the Indian traditions, Indian cultures. And besides this, the modern, updated technology and information we are providing to each and every student of ours. So this makes the Alokites very different and unique from all the other students in the crowd. Today, I once again welcome all the dignitaries, the installation officer, the today's chief guest, guest of honor, and the presiding officer, and all my fellow team members, and all the students. And in advance, I want to thank and congratulate all the office bearers that they are the torch bearers of this institution. Today, it is just an start of seeking the responsibilities and fulfilling your commitments. So once again, I wish that this session 24-25 brings all good news, good information to you and to your members. So once again, thank you. Jai Hind, Jai Alok. Thank you so much, sir, for your kind words. Name of anything is very important and it has a very powerful impact on everything. We also made a number of changes for the near future in our internal system of school from now onwards to make a positive impact on everything. For that, I would like to request students for theme show presentation. मैं भारतवर्ष हूं। मेरी संस्कृति सनातन संस्कृति कहलाती है। मेरे देश के बालकों में संस्कारों का निर्माण करने के लिए आश्रम व्यवस्था सदियों से चली आई है। इन संस्कारों के कारण एक ऐसी संस्कृति का विकास हुआ जिसने पूरी दुनिया को प्रकाश ज्ञान का देकर उन्हें सुसंस्कृत बनाया। सदाचार के कारण जीवन की उन गुत्थियों को सुलझाने का काम उत्तम आचरण और नैतिकता के आधार पर सही और गलत का अंतर समझने में मैंने ही तो पाठ पढ़ाया है। मैं भारतवर्ष हूं। आत्मनियंत्रण और संतुलित जीवन जीने के लिए संयम का पाठ भी मैंने ही तो दुनिया को दिया है। जिस जगह समर्पण का भाव हो,
जिस समाज में समर्पण करने के सामर्थ्य हो, अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पण के भाव से जब व्यक्ति कर्म करता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जब सत्संग में श्रेष्ठ संगति मिल जाए, हम सब मिलकर सत्संग करें तो हमारी मन और आत्मा शुद्ध होती है। यही तो भारतवर्ष है। आइए आज के बाद हम अपने अपने समूहों को इस रूप में जानेंगे, समझेंगे और उसके अनुरूप आचरण करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। मैं हूँ संस्कार समूह। संस्कार वे मूलभूत मूल्य और आचरण हैं जो एक व्यक्ति को समाज में सही दिशा में चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। संस्कार सच्चे मानवता की नींव। अब से हम संस्कार समूह कहलाएंगे। मैं हूँ संस्कृति समूह। संस्कृति एक समाज की समृद्ध धरोहर और परंपराओं का स्वार है जो उसकी पहचान को स्थिर और संरक्षित रखती है। संस्कृति हमारी पहचान, हमारी शान। अब से हम संस्कृति समूह कहलाएंगे। मैं हूँ सदाचार समूह। सदाचार का अर्थ है उत्तम आचरण और नैतिकता जो हमें सही और गलत का अंतर समझने में मदद करते हैं। सदाचार नैतिकता की शक्ति। अब से हम सदाचार समूह कहलाएंगे। मैं हूँ संयम समूह। संयम आत्मनियंत्रण और संतुलित जीवन जीने का मूल मंत्र है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में स्थिर और सकारात्मक रखता है। संयम संतुलित जीवन की कुंजी है। अब से हम संयम समूह कहलाएंगे। मैं हूँ सत्संग समूह। सत्संग का अर्थ है श्रेष्ठ संगति और सही मार्गदर्शन प्राप्त करना जो हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। सत्संग सच्चाई का मार्ग है। अब से हम सत्संग समूह कहलाएंगे। मैं हूँ समर्पण समूह। समर्पण का अर्थ है किसी उद्देश्य, व्यक्ति या कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठा और आत्मसमर्पण जिसमें हम अपने हर प्रयास और ऊर्जा लगा देते हैं। समर्पण सफलता की पहली सीढ़ी है। अब से हम समर्पण समूह कहलाएंगे। मैं हूँ सनातन समूह। सनातन का अर्थ है शाश्वत और चिरस्थायी मूल्य जो हमें हमारी पुरातन धरोहर से जोड़ते हैं। सनातन अनंत सत्य का प्रतीक। अब से हम सनातन समूह कहलाएंगे। नर्सरी सेकंड क्लास, संस्कृति समूह 3rd to 5th क्लास। संस्थान हमारा ज्ञान कर्म की ज्योति जगाता अमृतमय विचार सरसाता। जहाँ जगत कल्याण सुधा की वहाँ प्रेम रस धारा। आलोक संस्थान हमारा। आलोक संस्थान हमारा।
गौरव और संस्कृति का देश विदेशों में फैलाता सत्यम शिवम सुंदरम का संगम आलोक राज दुलारा आलोक संस्थान हमारा आलोक संस्थान हमारा। श्री राम जय जय राम। संस्कार समूह नर्सरी टू सेकेंड क्लास, संस्कृति समूह 3rd to 5th क्लास, सदाचार समूह 6th to 8th क्लास, संयम समूह 9th to 10th क्लास, समर्पण समूह 11th and 12th आर्ट्स, सनातन समूह 11th and 12th कॉमर्स एंड सत्संग समूह 11th and 12th साइंस। This is what our Alok is. Thank you so much, student, for this wonderful theme presentation. श्री राम जय जय राम। Now I would like to invite all the esteemed guests to please come upon the stage and take their respective seats. Delegation of responsibility and giving authority to students is important as it teaches them lifelong skills of leadership. Moving ahead with our program, now we have a house officials parade and badge presentation. The one who is holding the flag, the charter, is the secretary. The one in between is the president. And the next to the president holding the flag is the vice president. Next house is Puran House. Secretary Vedanshi Chandwani, President Sagnik Das, Vice President Jyoti Rathod. Puran. Next is the Ramayan house. Next is the Ramayan. Ramayan Secretary Dev Prakash Kumawat, President Siddhi Chauhan, Vice President Nishtha Yadav. House Upanishad. Secretary Chavi Ameta, President Netra Chandrayan, and Vice President Dushyant Singh Rathod.
Vansh Tantra, Secretary Parikshit Meena, President Dua Rawat, Vice President Harshita Soni. Next is the Geeta House, Secretary Ratna Kumawat, President Lavanya Ajmera, and Vice President Pushti Joshi. Vedas, Secretary Daksha Chaplot, President Karan Jain, Vice President Shakshi Shekhawat. For now, I request our today's chief guest, Rotarian Anil Chajet sir, President of Rotary Club Udaipur, and Rotarian Bharat Sarupriya sir, Secretary of Rotary. To please come upon and assign the badges to respective. To continue the program, we have now the oath-taking ceremony, which signifies the essence of responsibility, integrity, and dedication. Our student leaders, with unwavering commitment, will pledge to uphold the values and principles that our school holds. Friends, मैं अपने सामने एक भविष्य देख रहा हूं जो अपने भारत का भविष्य है और जिस तरह से प्रदीप भाई ने मेरे को समझाया कि कैसे हमने एक नई थीम से शुरुआत की, तो मेरे को आज मौका मिला है आप सबके बीच में आने का और एक ओथ सेरेमनी है और इन्वेस्टिट्यूर सेरेमनी है जिसको हम बोलते हैं, उसके में भागीदारी अपने आप को उसको दिलवाने का जो मौका मिला है उसके लिए आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी कि मेरे को आज मौका मिला, चांस मिला है। ओथ सिर्फ एक ओथ सेरेमनी के हिसाब से नहीं लें कि आज हमको यहाँ पे फॉर्मली ओथ लेनी है, ये एक जिम्मेदारी है आप सबके प्रति, आप सबने जो लेने के लिए आज आप यहाँ खड़े हैं कि हम हमारी जो भी जिम्मेदारी है उसको पूर्ण तरह से निभाएंगे और अपने कार्य और दायित्व को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप जो लीडर्स हैं, जो आपके प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज और जो भी आपके पोस्ट के पदाधिकारी हैं, उनको बताना चाहूँगा कि मैं शुरुआत करूँगा, मैं आप शुरुआत करें, उसके बाद में आप रिपीट करें अपना नाम और जो मैं बोलूं उसको आप आगे रिपीट करें। सो आई विल स्टार्ट। आई, आपका नाम बोलें, जो आपका पद है जिसके लिए आप शपथ ले रहे हैं, और जो जिस हाउस के आप हैं सदस्य, थोड़ा सा जोर से बोलें, हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप लीडर्स हो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बात करने के तरीके से ही आपका कॉन्फिडेंस आएगा, तब ये बच्चे आपकी हर बात को मानेंगे, आप हर की बात को समझेंगे। इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी, टेक ए नोट that I will certainly abide by the rules and regulations of the school. I would feel elated to participate with full zeal and zest in all the activities of the school and will put my sincere efforts to keep the flag of our house and Alok high.
I promise to bestow our selfless services towards my soul Alok and would prove myself to be a true Alokite. Thank you. For now, I request our today's chief guest, Rotarian Anil Chajit sir, President of Rotary Club Udaipur, and Rotarian Bharat Sarupriya sir, Secretary of Rotary Club Udaipur, to please assign badges to respective house officials. We are eager to hear the words of wisdom and inspiration from our chief guest. Without further ado, may I request Anil sir to please grace the stage. सर्वप्रथम मैं यहाँ पे जो अपना एड्रेस से शुरुआत करना चाहूँगा। हमारे पूजनीय श्यामलाल जी कुमावत साहब, अंकल मेरे, जिनको हम बहुत अच्छी तरह से जानते थे, बहुत एक व्यक्ति जो मेरे पिताजी के बहुत क्लोज थे, हम जिन्होंने ये नींव रखी आलोक की, जिनका ये विजन था कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जिसमें हमको संस्कार, जो हमारे समाज के संस्कार, हमारे धर्मों के संस्कार और जो हमारे ज़िंदगी में बच्चे कैसे आगे बढ़े, जो कि शायद आज के स्कूल्स और एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम जो उन्होंने नींव रखी, आधारशिला रखी, उस इंस्टीट्यूशन में आके अगर मेरे को कुछ बोलने का मौका मिल रहा है तो मैं शायद अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ।
प्रदीप भाई जो हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं और आपके डायरेक्टर हैं और कुमावत साहब के सुपुत्र हैं, वो इसको इतना बढ़िया तरह से आप लोगों को आगे ले जा रहे हैं। जो संस्कार, क्योंकि नए वर्ष के अंदर देखते हैं तो किसी भी चौराहे पे आप लोग नज़र आ जाते हैं। जो हंसी शायद आजकल बाज़ार में लोगों के घरों में नहीं है, वो आप लाफ्टर डे वगैरह मना के करते हैं। और जिस तरह से आप इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं, इस संस्कार की यहाँ से जो बच्चे निकल रहे हैं वो डेफिनेटली एक अलग ही होते हैं। तो भाई प्रदीप जी, हमारे पीडीजी निर्मल जी सिंघवी साहब, बड़े भाई मेरे, रोटरी क्लब के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, भरत भाई जो हमारे साथ सेक्रेटरी हैं रोटरी क्लब उदयपुर में, प्रिंसिपल टाक साहब, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड द मैनेजमेंट स्टाफ, एंड ऑफ कोर्स जो आज इंटरैक्ट क्लब की यहाँ स्थापना हो रही है उसके लीडर्स, बिकॉज हम इंटरैक्ट एक रोटरी का पार्ट है जहाँ हम लोग अपने आप को तैयार करते हैं, एक ज़िंदगी के लेन देन के लिए गिव एंड टेक वाली बात है। ज़्यादातर हम सिर्फ लेते हैं, देते नहीं हैं। तो समाज को वापस देने की, लीडर्स डेवलप होने की जो हमारी यहाँ परिपाटी है, आप सभी का स्वागत। बड़ा मुश्किल है एक स्कूल में आके एड्रेस करना, क्योंकि आप सब यहाँ टीचर्स हैं जो विद्वान लोग हैं, उनके सामने एड्रेस करना और आपको संबोधित करना शायद एक कठिन कार्य है। बट मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप ना ही सोसाइटी की नींव है, कोई भी मकान बनता है तो सबसे स्ट्रांग उसकी फाउंडेशन होती है। अगर फाउंडेशन वीक होगी तो हमेशा हम आगे एक कच्चे मकान का ही निर्माण कर रहे हैं जो मुश्किल से मुश्किल जो परिस्थितियाँ उसको झेल नहीं पाएगा। तो आप सब यहाँ स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस भारत के नहीं दुनिया के लीडर्स डेवलप हो रहे हैं। कोई पता नहीं कि आप यहाँ से वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन जाएं, कोई पता नहीं कि यहाँ से आप इंडिया की या वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ बन जाएं, कोई पता नहीं कि शायद एक बहुत बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट के मालिक बन जाएं और आप भी लोगों के अंदर अपना ज्ञान बढ़ाएं। सो हमको कुछ नहीं पता कल कैसा है, लेकिन शुरुआत उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो एज स्टूडेंट्स और क्योंकि मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को भी संभालता हूँ, मैं आप सबको यही बोलूँगा कि एक मेरी बहुत फेवरेट लाइन है, कल्चर ईट्स स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट। हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो भी हम स्ट्रैटेजी ज़िंदगी में बनाएं, जिस चीज़ के बारे में सोचें, वो ज़रूर पक्की हो, मजबूत हो। अगर हमारा कल्चर वीक होगा तो हम अच्छी सी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो फेल हो जाएगी। तो कल्चर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं आप लोगों में शुरू से ही उसके बारे में बात की जाती है। जैसे आज मैंने देखा कि आपने जो एक थीम बेस्ड नया सिस्टम बनाया है जिसके अंदर आप संस्कारों से बात करते हैं। क्यों? संस्कार तो नींव होते हैं, हमारे जीवन की नींव ही संस्कार होते हैं। उसके बाद संस्कृति, आप सदाचार, संयम, सत्संग, समर्पण और सनातन, सनातन की डिग्री लेके हम आगे बढ़े होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। हम सब आगे बढ़ें, एक कल्चर को लेते हुए चलें कि हमारे अपने आप को बहुत मजबूत कल्चर के साथ आगे जाना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कल्चर। दूसरा है कैरेक्टर। हमारा कैरेक्टर बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत स्पष्ट लोग होने चाहिए, जो हैं वही दिखने चाहिए, क्योंकि ए मैन इज नोन बाय द कैरेक्टर। तो हम जो कर रहे हैं वही होना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ बात कर रहे हैं और पीछे कुछ और बात करें। तो कैरेक्टर शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। कल्चर और कैरेक्टर को अगर हम आगे लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हम एक नए आयाम और ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। तो मैं आप सबको, इवन जो हमारे इंटरैक्ट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जो गिव एंड टेक की बात है, हम हमेशा लेना चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। तो आप सब जो यहाँ पे इंटरैक्टर्स के नए प्रेसिडेंट, जो सेक्रेटरी, लीडर्स बन रहे हैं, या जो अभी हाउस के लीडर्स हैं, तो हम लीडर्स हैं। लीडर्स में कभी डर नहीं होता, लीडर्स में कॉन्फिडेंस होता है। और लीडर्स की सबसे बड़ी परिभाषा होती है कि वो नए लीडर्स डेवलप करें, अपना उत्तराधिकारी तैयार करें, आगे नए लीडर्स बनाए दुनिया के लिए। तो आप सब अपने आप में लीडर्स हैं, जिनको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय कुछ चीज़ को लीड करने का मौका मिलेगा। तो आप अपने आप को तैयार करें। इस स्कूल के अंदर बड़ा अच्छा है, मैं यहाँ पे 2-3 बार इस तरह के सेरेमनीज में आ चुका हूँ। इन्वेस्टिट्यूर जो अपन बात करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाली बात है। जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें ज़िंदगी में, उसको पूर्ण तरह से 100% निभाएं। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है और अगर हम निर्वहन नहीं करते हैं उसका, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। तो आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उसको पूर्ण तरह से निभाएं। लीडरशिप बने, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप करें, लीडरशिप विद द कैरेक्टर बने, लीडरशिप फॉर ए राइट कल्चर बने। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई यहाँ पे।
आपका इन्वेस्टिट्यूट सेरेमनी है प्लस इंस्टॉलेशन सेरेमनी, एक इंटरेक्ट की। हमारा इंटरेक्ट शायद यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा इंटरेक्ट या सबसे बड़ा इंटरेक्ट है। तो आप सब जोरदार तालियों से अपने आप को बधाई दें कि आप सबसे बड़े इंटरेक्ट, जहाँ पे करीबन 650 से 1000 बच्चे हैं। श्री राम जय बच्चों, जय राम। हम अभी बचपन में हैं, तालियां ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारे पास वाले से उससे ज्यादा जोर से बजे, ज्यादा आवाज हो, ज्यादा तेज हो और लोगों को लगे आसपास कि यहाँ पे कोई शुभ और मंगल कार्य हो रहा है या कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। तो एक बार आप सब जोरदार तालियां, आप सब अपने आप को बजाएं। यस एग्जैक्टली, अब मजा, अब लग रहा है कि आलोक स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है। और धन्यवाद प्रदीप भाई, आपने मेरे को यहाँ बुलाया, एक मौका दिया आपसे मिलने का, बातचीत करने का और नए लीडर्स से मिलने का। बड़ा अच्छा लगता है जब यंगस्टर्स से मिलते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत अलग होती है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड डू बिल्ड द राइट कल्चर हियर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। श्री राम जय राम। Thank you so much, sir, for your encouragement and guidance. We are humbled to have your presence here on this momentous occasion. The quality of your life will be determined by the quality of our contribution. When you work to improve the lives of others, your life improves automatically. Evaluating the spirit of service and contribution, the Interact Club of the school has conducted its installation ceremony today for the academic session 2024-25. Let us now move forward, guided by the values and principles that define school. Together we can rise and shine, making a profound difference in our school and the world beyond. Next is the oath ceremony of Interact officials and a pin presentation. I request all the interactors to please come on the stage. Anshul Chanderia, President. Lakshita Rawat, Vice President. Suryadev Singh, Secretary. Pranjal Sukhwal, Joint Secretary. Surbhi Rathore, Treasurer. Dharamveer, Manitya, Nihal, Rajveer, Rudra Pratap, Bhupendra, Vyom Paneri, and Koshin. May I now request Rotarian Nirmal Singhvi sir, the installation officer, to please come on the stage for the oath ceremony and badge distribution. आज बहुत शुभ अवसर है। सबसे पहले मैं अध्यक्ष, आपका नाम, अंशुल जी को निवेदन करूंगा। अंशुल प्लीज रेज योर राइट हैंड और मैं जो बोलूँ वो दोहराएंगे। मैं इंटरेक्टर, अपना नाम लें, जो इंटरेक्ट क्लब आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरन मगदी सेक्टर 11 के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूं, शपथ लेता हूं कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एवं इंटरेक्ट क्लब के विधि विधान एवं आदर्शों का पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। तो इंटरेक्ट क्लब के अध्यक्ष आपके सामने हैं, एक बार इनका भी स्वागत करें। जय राम श्री राम। अब मैं सभी निदेशक मंडल के सदस्य और सचिव इंटरेक्ट से निवेदन करूंगा कि अपना दाहिना हाथ खड़ा करें। प्लीज रेज योर राइट हैंड। मैं जो बोलूं दोहराएंगे। मैं, अपना नाम लें,
जो इंटरेक्ट क्लब आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरण मगरी के निदेशक मंडल में निर्वाचित हुई हूँ, शपथ लेती हूँ कि मैं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय एवं इंटरेक्ट क्लब के विधि विधान एवं आदर्शों का पूर्ण श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगी। ईश्वर मेरी सहायता करे। तो एक बार और जय घोष कर दें इनके लिए। इंटरेक्ट श्री राम जय राम जय जय राम। शशांक जी पिन के लिए सबको आप भी पधारे अनिल भाई। Thank you so much, sir. Now I request Rotarian Nirmal Singhvi sir for the badge distribution and all the dignitaries.
Thank you so much, sir. May I now request Nimal Singhvi, sir, to please share insights and words of wisdom with us. धन्यवाद। आज के इस इंटरेक्ट क्लब के पद स्थापना समारोह में मंच पर हमारे उदयपुर और मेवाड़ की शान भाई डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, निदेशक आलोक संस्थान, जो खुद ही अपने आप में एक मल्टी फेसेट पर्सनालिटी हैं और हमारे रोटरी क्लब के माध्यम से इस वर्ष इंटरेक्ट क्लब के चेयरमैन हैं और यंग लीडर कांटेक्ट हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि विश्व के सबसे बड़े इंटरेक्ट क्लब के आलोक स्कूल में होने का मुझे बहुत गर्व है। तो एक बार अपने लिए जय घोष जरूर कर दें। हमारे लीडर और रोटरी क्लब उदयपुर के युवा अध्यक्ष ये भी बहुत टैलेंटेड और मल्टीफेसेटेड हैं और मैं इनको छोटे भाई की तरह ही प्यार करता हूं, भाई अनिल जी छाजेड़, और मेरे भाई भरत जी सरुप्रिया जो रोटरी क्लब उदयपुर के सचिव हैं, और प्रतीक भैया जो यहाँ युवा के रूप में प्रतिनिधि है, क्योंकि मुझे कुमाऊं साहब की भी याद आ रही है, आदरणीय श्यामलाल जी कुमाऊं साहब की। जब से मैं इंटरेक्ट क्लब में आता हूं मुझे लगता है कि 20-25 साल तो मैंने शपथ करवा दी है, और आलोक का भी प्रदीप जी बता रहे थे 40वां साल अगले वर्ष है। तो मुझे बहुत खुशी है कि देखते देखते हमारा संस्थान कितने आगे पहुंच गया और हमारे बच्चे कितने आगे पहुंच गए हैं। कोई CA है, कोई IAS है, कोई IPS है, सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। और मेरे शिक्षकगण, भाई शशांक जी, सभी शिक्षकगण, इंटरेक्ट क्लब का मतलब होता है, जो इंटरेक्ट का नाम है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एक्शन। ये जब इसका नाम सोचा गया, बहुत सारे सुझाव लिए थे विश्व में, और काफ़ी सुझावों के बाद इसका इंटरनेशनल एक्शन को कर दिया इंटरैक्ट। तो ये अपने नाम के पीछे ये संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ये है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि 1962 में सबसे पहले इंटरेक्ट क्लब की विश्व में स्थापना हुई थी, फ्लोरिडा में हुई थी, USA में। तो 1962 से इंटरेक्ट चल रहा है और अभी 4 लाख से ज़्यादा इंटरेक्टर विश्व में हैं और उसमें से करीब 200 देशों में इंटरेक्ट है। तो एक आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ जाते हैं जब इंटरेक्ट क्लब में आते हैं, और इंटरेक्ट क्लब के जो गोल्स हैं और जो उद्देश्य हैं, हमें सिर्फ युवाओं को रास्ता नहीं दिखाना है, हमें युवाओं को साथ चलना है। रोटरी कहती है कि हमें युवाओं के साथ चलना है, पग पग पे उनका साथ निभाना है। जब हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, हमारे युवा जब मंच से यहाँ बैठेंगे और हम अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो वो हमसे हिसाब मांगेंगे आपने क्या किया। तो हम आपके साथ हैं और तन मन धन से साथ हैं इंटरेक्ट क्लब के। और उदयपुर की गलियों में जब गूंज होती है कोई भी सामाजिक कार्य की, तो इंटरेक्ट क्लब आलोक सबसे पहले होता है, चाहे नशा मुक्ति हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे स्वास्थ्य हो। तो मैंने देखा है इंटरेक्ट क्लब सबसे आगे है। दूसरी बात यह है कि अभी 2022 में ही प्रदीप जी इंटरेक्ट क्लब के गोल्स और रिवाइज हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और खुशी की बात है कि सांस्कृतिक कल्चर को बढ़ावा देना, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, इंक्लूजन ऑफ कल्चर, ये अभी रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के बोर्ड ने 2022 में शशांक जी इसको निर्धारित किया है। जो हमारे आलोक स्कूल में संस्कृति की बात करते हैं इतने वर्षों से, वो अब रोटरी बोर्ड ने भी उसको मान लिया है और 2022 में संशोधन किया है कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक कल्चर, संस्कृति को आगे बढ़ाना ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपके लीडरशिप गुण आगे बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और शांति कायम करना, और सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय सेवा करना,
वी आर ऑल सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विदाउट बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। तो एक आपको ग्लोबल सिटीजन है। आज जो भी कंपटीशन में अपन उतरते हैं, प्रतिस्पर्धा में उतरते हैं, तो हमारा कोई उदयपुर से या हिरणमगरी से या कोई मेवाड़ से हमारा प्रतिस्पर्धा नहीं है बच्चों का। उनके टैलेंट का पूरे विश्व में प्रतिस्पर्धा है, पूरे विश्व में कंपटीशन है। और जैसे मैं हर जगह कहता हूँ, सेवा में भी प्रतिस्पर्धा है। अभी से हमें कलेक्टिव लीडरशिप सीखनी है। ये इंटरेक्ट के गोल्स में बता रहा हूँ जो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय ने निर्धारित किए हैं, मेरे मन से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। कलेक्टिव लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है। कलेक्टिव रूप में काम करना, टीम वर्क में काम करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें देखना है किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना और शांति कायम हो। आज आपने देखा यूक्रेन और रशिया की कितनी लड़ाई हुई, तो वहाँ रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे, तो वो कार में अपना ऑफिस चलाते थे। कितने लोग घायल हो गए तो उनको कार में उन्होंने इलाज करा। कितने लोग घायल हो गए तो उस वक्त क्या हुआ, दुख में रोटरी बहुत काम आई, रोटरी एक्टर बहुत काम आए, इंटरेक्टर बहुत काम आए। तो रोटरी की सदस्यता यूक्रेन के युद्ध में बढ़ गई घटने की जगह। वो क्यों बढ़ी कि हम सद्भावना और शांति में विश्वास रखते हैं और हम सद्भावना और शांति कायम करते हैं। हमारे सब बच्चों में बहुत टैलेंट है। मैं 30 देशों में रोटरी के माध्यम से गया और मैंने देखा कि हमारे भारत के बच्चे किसी से कम नहीं हैं। वहाँ के राष्ट्रपति भी उनके बच्चों को कहते हैं पढ़ो वरना भारत से बच्चे आ जाएंगे। तो ये जो हमारी बात है हमें कायम रखनी है, हमें हमारा परचम लहराना है और हमें आगे से आगे बढ़ना है। भाई डॉक्टर प्रदीप जी खुद ही एक बहुत ही मेहनती, टैलेंटेड और इतना आपको समय देते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे आपकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में निखार आएगा और हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको ज़्यादा बात नहीं कहते हुए नई टीम को बधाई देता हूँ, सारे हाउसेस को बधाई देता हूँ और मैं मानता हूँ कि आपका भविष्य सुखद हो और आप कलेक्टिव लीडरशिप में अच्छी सामुदायिक सेवा करें, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय सेवा करें। जय हिंद, जय रोटरी। धन्यवाद। Thank you, sir, for your valuable thoughts. Now I request Honorable Director, sir, to please give away the token of love and respect to our dignitaries. Let us now hear from our Honorable Director Sir the words of encouragement and guidance. I request Honorable Director Sir to please grace the stage and lead us with vision and integrity. रोटरी क्लब के पर्याय के रूप में जिनकी अपनी एक पहचान है और पिछले 30 वर्षों से बिना किसी एब्सेंट के, बिना किसी बाधा के जो निरंतर इंटरेक्ट की शपथ में आते रहे हैं, ऐसे आदरणीय बड़े भाई निर्मल जी सिंह भी। जो बच्चे नए जुड़े उनको मैं बताना चाहता हूं कि वे पेशे से स्थापित चार्टर अकाउंटेंट हैं और उदयपुर की जो चार्टर अकाउंटेंट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे पहले लीड करने वाले आदरणीय निर्मल जी सिंह भी हैं, जिनको आज मीडिया भी सबसे पहले बजट के बाद अगर कोई एनालिसिस के लिए बात करता है तो वो निर्मल जी का नाम सबसे पहले आता है। आलोक परिवार से जुड़े होने के कारण श्रद्धेय आचार्य जी से भी आपका स्नेह रहा
और सबसे बड़ी बात यह कि आलोक के बच्चों के इंटरेक्ट की जितनी गतिविधि है, मेरे नॉलेज में अभी तक ऐसा नहीं है, जितनी भी इंटरेक्ट की गतिविधि उसमें निर्मल जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, दूसरा प्रोग्राम कैंसिल करेंगे, लेकिन आलोक के इंटरेक्ट के हर कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति हम सबको प्रेरणा देती है। रोटरी क्लब उदयपुर के अध्यक्ष के नाते भाई अनिल जी ने अभी एक बात बताई नहीं, लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं, शशांक सर और ये सब जानते हैं इस बात को, अगर अनिल जी के फादर का फोटो और आचार्य जी सर का फोटो मिलाया जाए तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का चेहरा एक जैसा लगता है, और वो चश्मे में तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये आचार्य जी का फोटो है या एनके छाजेड़ साहब का फोटो है। तो छाजेड़ साहब का मेरे पे बहुत बड़ा स्नेह था। मैं जब रोटरी में आया था तब वो बड़े इतने हम्बल थे, इतने जेनरस थे और इतने पोलाइट थे कि मैंने कभी उनको ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा। ये उनसे गुण हमको सीखने की बात है, इसलिए मैं आज उनका जिक्र कर रहा हूं। भाई वर्ष स्वरूप्रिया हमारे जो सेक्रेटरी हैं, इनकी मदर आलोक में टीचर रही हैं और ये भी आलोक परिवार से जुड़े हैं। आज एक पदम जी और आने वाले थे जो हमारे यूथ सर्विस के डायरेक्टर हैं, लेकिन उनके घर में कोई कमी होने के कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन उनके बच्चे भी आलोक में पढ़े हैं। मैं अनिल जी को एक बात बताना चाहता हूं कि आलोक इंटरेक्ट क्लब की जो ये गतिविधियां हैं, मैं चूंकि डिस्ट्रिक्ट के सारे कार्यक्रमों को देखता हूं, कई सारे रोटरी क्लब से ज्यादा गतिविधियां हमारे इंटरेक्ट क्लब करता है। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि उनके घर दिया जले अभियान है, जो ग्रामीण बच्चों के साथ जुड़ने का एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है जिसमें समरसता का संदेश जाता है। केवल हम उपहार देने या किसी की गरीबी का उपहास उड़ाने के हम तुमको देने आए, ये बिल्कुल भाव नहीं होती। उसके पीछे भाव जो हमारा होता है वो समानुभूति का, जो एक एम्पैथी का जो भाव है, वो लेकर ये बच्चे वहां पर जाते हैं। एक मैं उस कोने में लगातार मैं कब से देख रहा हूं, या तो तुमको ऐसा लग रहा है कि आज दूसरे गेस्ट आए तो आज स्वतंत्र होकर कुछ भी कर लो। सिट प्रॉपरली। ये क्या मैसेज दे रहे हो आप इनको जो गेस्ट आए कि देखो वो पीछे लगातार यू आर कीप ऑन टॉकिंग। भारतवर्ष में 30 वर्ष, बल्कि मैं कहूंगा 34 वर्ष पहले आलोक इंटरेक्ट क्लब ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, और उस समय लोगों को लगा था कि एंटी पॉलीथीन ड्राइव भी कोई ड्राइव होता है, और हमने वो कार्यक्रम शुरू किया था। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अब तक इन 30 सालों में 750 एक्टिविटीज एंड पॉलीथीन छोड़ो अभियान के अंतर्गत हमने 750 से ज्यादा एक्टिविटीज इतने सालों में की है। अभी भी हमारा ये अभियान चल रहा है। अभी हमने ऊपर एक प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर बना रखा है। बच्चे जो भी प्लास्टिक कहीं दिखता है या खुद लेके भी गलती से अगर आते हैं तो वो उसमें डालते हैं, और एक एजेंसी है जो उसको यहाँ से कलेक्ट करके लेके जाती है। आपकी जानकारी में है ही है कि हमने करीब 1 करोड़ रुपए तक के जूट के बैग हमने रोटरी के सहयोग से इंदिरा IVF के साथ मिलकर बांटे थे, और अभी भी वो हमारे पास कुछ पड़े तो हम समय समय पर लोगों को बांटते रहते हैं। मैं इस अवसर पर एक बात जरूर, आज मुझे अभी सवेरे सवेरे मुझे किसी ने एक मैसेज भेजा, मुझे अच्छा लगा और मुझे भी ध्यान में आया कम से कम, क्योंकि आज भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है, और उन्होंने बहुत सुंदर बात लिखी। APJ अब्दुल कलाम का आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनके जो गुरु थे वो प्रमुख स्वामी, जो स्वामीनारायण के जो समूह के हेड है, उनको उन्होंने गुरु बनाया था। उन्होंने कहा कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों मिलकर ही इस समाज को दिशा देने का काम कर सकते हैं,
जो लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान को हम पढ़ लेंगे और आध्यात्म को छोड़ देंगे, वो जीवन में कभी विकास की ओर नहीं बढ़ सकते, वो विनाश की ओर बढ़ेंगे। ये मैं नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं। तो जिस आध्यात्म की बात हम करते हैं यहां बैठकर, जिस सनातन की बात करते हैं, हमने आज 7 समूह को जिस ढंग से यहां पर रखा, उसके पीछे नाम से कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक नाम लगातार जब दिमाग में बार बार हैमर करेगा, बार बार तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरेगा, तो तुम्हारे अंदर वो अवचेतन मन में कहीं ना कहीं वो बात स्थापित होगी और तुम में वो बीज रूप से जो आज तुम्हारे अंदर डाला गया है, आने वाले कल में कहीं ना कहीं वो प्रस्फुटित होकर तुम्हारे साथ जीवन से जुड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि ये मैं नहीं सोचता, वैज्ञानिक सोच क्या कहती है। उन्होंने नाम दिए इस बारे में। विज्ञान और आध्यात्म की एकता को सिद्ध प्रचारित करने में पाइथागोरस, गैलीलियो, आइंस्टाइन, रामानुजम, जगदीश चंद्र बोस, चंद्रशेखर, फ्रांसिस कॉलिंस जैसे विचारक और वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि मानव जीवन का अनिवार्य अंग यदि कोई है तो विज्ञान को संयमित करने में आध्यात्म सबसे महत्वपूर्ण है। ये सब साइंटिस्ट कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर कलाम ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब स्वामी महाराज से हम चर्चा कर रहे थे तो गुरु ने कहा कि 6ठा अध्याय ईश्वर में आस्था को सम्मिलित करिए, तभी पुस्तक पूर्ण होगी। विज्ञान और धर्म का अध्यात्म के अलग अलग रूप में देखना न केवल भूल है, बल्कि एक ही सिक्कों के 2 पहलू होने को नकारना है। मिसाइल मैन ने कहा कि जीवन में मुझे जब भी कभी निराशा के भाव आते थे, सवेरे मेरे पिताजी जब अखबार देने का काम करते थे, कभी कभी बीमार हो जाते थे तो मैं साइकिल पर जाकर अखबार बांटने का काम करता था। गरीबी से निकलकर मैंने जीवन में देखा कि विज्ञान यदि विनाश का कारण बनता है तो वो विज्ञान किसी काम का नहीं। इसलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो विज्ञान में तकनीक विकसित की गई, उसका आज भी हार्ट के ऑपरेशन में उपयोग होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि कल हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 9वीं कक्षा के बच्चों को 2 साल पूरे होने पर 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए सेंट्रल स्कूल गई और 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाते वक्त उन्होंने कहा कि हमको जीवन में ईश्वर के प्रति धन्यवाद देना चाहिए कि हमें मनुष्य रूप जीवन दिया और हम सबको इस पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण और पेड़ लगाने का काम करना चाहिए। ये द्रौपदी मुर्मू जी ने कल 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते वक्त कहा। आज उनके जितने उपहार इन 2 सालों में आए उसका वो ऑक्शन करके और वो पर्यावरण संरक्षण में देने जा रही है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि 2020 में भारत की दिशा बदल जाएगी और वो हम देख रहे कि दिशा बदल रही है। गरीबी के उस संघर्ष से जब बाहर निकले राष्ट्रपति भवन से, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक राष्ट्रपति जब गए तो उनके करीब 11 ट्रक सामान गया था और वो जब गए थे तो उनके हाथ में केवल एक शर्ट के कुछ 3-4 शर्ट की अटैची और एक अटैची में किताबें थी, बस और कुछ नहीं था। वो निकल के चले गए और आखिर में जब आसाम में इसी स्वामीनारायण के उस संदर्भ में लिखी हुई पुस्तक पर जब वो बच्चों से बात कर रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते वो व्यक्ति एक ऐसा शिक्षक जिसने अपनी यात्रा एक वैज्ञानिक के नाते इस देश में करके इस देश के गौरव को बढ़ाया और अंत में भारत रत्न बना, पढ़ाते पढ़ाते इस दुनिया से चला गया। वहीं हार्ट अटैक आया आसाम में और वहीं पढ़ाते पढ़ाते वो चला गया। ऐसी मौत शायद ईश्वर बिरलों को देता है कि काम करते करते चले गए। वो आज का दिन था, अनायास ये दोनों कॉम्बिनेशन आज मिल गए, तो मुझे लगा कि ये बात आपसे शेयर करनी चाहिए। क्योंकि हम एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती तो नहीं मनाते, लेकिन हम उनके कहीं न कहीं कोटेशन जब जब मौका मिले हम आपसे चर्चा करते हैं। अग्नि की उड़ान उनकी पढ़िए आप, क्या लिखा उन्होंने। आलोक इसी दिशा में प्रयत्नशील है, इंटरेक्ट भी वही एक काम करता है
जब मानवता के लिए, पीड़ित मानवता के लिए, अभी निर्मल जी जैसा बता रहे थे कि पीड़ित मानवता के लिए इंटरेक्टर्स के मन में जब संस्कारों का बीज हो, और अभी कल्चर की बात है, अभी हमारी जो थीम है वो यही है कि संस्कृति से जुड़िए, और संस्कृति से जुड़ना होगा तो संस्कारों से जुड़ना होगा। और संस्कार क्या है? जो आप लोग इंटरेक्ट के माध्यम से काम करेंगे वो आपके संस्कार हैं। ज्यादा समय न लेते हुए, चूंकि हमारा समय जो निर्धारित था वो पूरा हुआ, मैं आदरणीय निर्मल जी और भाई अनिल जी और स्वरूप्रिया जी तीनों का बहुत साधुवाद करता हूं। समय समय पर हम जो कार्यक्रम करते हैं, मुझे कभी कभी एक दुख इस बात का जरूर होता है, निर्मल जी से मैं कहता रहता हूं कि हम जो काम करते हैं उसमें रोटरी का हम नाम जोड़ते हैं। नव वर्ष पर हम कम से कम लाखों रुपए खर्च करते हैं, रोटरी तो उसमें 15-20 हजार रुपए खर्च करती है, लेकिन उनका नाम सब जगह हम जोड़ते हैं। उसके पीछे भाव ये कि जिस संगठन से हम जुड़े हैं उसके प्रति हमारा समर्पण का भाव है। हम चाहते हैं कि वो संगठन हमसे जुड़ा हुआ है तो हम उसके नाम को लेकर उसकी प्रतिष्ठा में भी 2 ऐसे काम करके दिखाएं ताकि उनको भी गर्व हो और हमको भी गर्व हो। यह अनुभूति लेकर हम चलते हैं। भाई अनिल जी इस बात को देखेंगे कि उनके घर दिया जले अभियान कितना महत्वपूर्ण है। हमारे भाई राजेश जी 7-7 दिन तक जाते हैं, उन गरीब परिवारों की लिस्ट बना के लाते हैं। यूनिक वहां जाके दूसरे क्लबों की तरह गए और वहां पर कुछ सामान किया और फोटो खिंचवा दिया। कभी कभी शर्म आती है कि दे तो 2 केले रहे और फोटो खिंचा के, और बड़ा 15 जने उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। मरीज को 2 केले दे रहे और 15 जने फोटो खिंचा के। तो ये जो देने के, रहीमदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी, तो उनको पूछा था कि यार आप जब देते हो तो आपके नैन नीचे क्यों होते हैं? तब उन्होंने एक दोहा लिखा था कि देवन हार कोई और है, हाँ, देने वाला तो कोई और है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। इसलिए मैं उसको देकर मैं उसके मन में आत्मग्लानि का भाव नहीं लाना चाहता। मेरे अंदर आत्मग्लानि का भाव है कि मुझे इसको देना पड़ रहा है, सहज रूप से ईश्वर इसको सीधा दे देता तो मुझे नहीं देना पड़ता। ये भाव होना चाहिए और शायद यही बच्चों में हमारे संस्कार है। इसलिए जिसका जन्मदिन होता है वो वनवासी कल्याण पर 100 रुपए 50 रुपए वो हर बच्चा डोनेट करता है, और वो डोनेशन से हम जो स्पंदन के कार्यक्रम और जो कार्यक्रम कंबल बांटने के और जो भी कार्यक्रम करते हैं वो हम उसके माध्यम से करते हैं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। जो हाउसेज हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं कि वे बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और करते हैं, उत्साह से करते हैं। लेकिन इंटरेक्ट के बैच लगाने के बाद अपने आप को तोप मत समझिएगा। हाँ, अब मैं इंटरेक्ट का प्रेसिडेंट हो गया और मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया। बड़े तो तब बनोगे जब बड़े काम करोगे। हाँ, दादागिरी के लिए नहीं बने हो इंटरेक्ट प्रेसिडेंट, हाँ, सेक्रेटरी या डायरेक्टर। काम करिए, सेवा के काम करिए और अपने आप को प्रूव करिए। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Thank you so much, sir. You have always inspired us to achieve greatness. Last but not the least, I invite respected Pratik sir for the vote of thanks with his kind words. A very good morning, everyone. It is my honor and privilege to propose the vote of thanks on behalf of Alok Senior Secondary School on this auspicious investiture ceremony of House and Interact Club of Alok. Firstly, I would like to express my deepest gratitude to our esteemed installation officer, Rotarian Nirmal Singhvi, past district governor of Rotary District 3056. Your guidance and inspiring words have truly set a higher standard for our newly appointed office bearers. Your presence here today underscores the importance of leadership and community service and values that we strive to instill in our students. We are deeply honored to have Rotarian Anil Chhajar, President of Rotary Club of Udaipur, session 2024-25, as our chief guest. Your encouragement and words of wisdom have greatly motivated our students to embrace their roles and responsibilities and enthusiasm. Thank you for gracing us with your presence and with your kind words. Our heartfelt thanks to guest of honor, Rotarian Bharat Sarupriya, Secretary of Rotary Club of Udaipur, session
2024-25. Your presence today adds a special significance to this ceremony. A special thanks to our presiding officer, also the director of Alok Senior Secondary School, Dr. Pradeep Kumawat. Your unwavering support and visionary leadership are our cornerstone of our success. Your dedication in nurturing our young minds is evident in this initiative and any other initiatives that we take. I would also like to extend our appreciation to our principal sir, in charges, teachers, all the interactors and all the students who have taken time to join here. And lastly, a big thank you to all the organizing committee and all the volunteers who have worked tirelessly behind the scenes and for the broadcasting as well. Thank you for your efforts. These are truly appreciated. Thank you so much. Shri Ram, Jai Ram. Thank you so much, sir. Now I would like to request to everyone to please stand up for the national anthem. School, attention. Studies, attention. Be ready for national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की. School, studies, sit down please.